If you are a skinny guy trying to build muscle, there is one lie जो तुमने अपनी सारी जिंदगी सुनी होगी, and that is you just need to eat more. Sounds right, isn't it? A lot of skinny guys do start eating more, but they still don't grow. They just gain a little bit of weight, but their physique still looks the same. गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द बिगेस्ट लाई स्किनी गाइज बिलीव अबाउट बिल्डिंग मसल। फिटनेस इंडस्ट्री में ओवर सिंप्लीफाइड एडवाइस को बहुत स्पेस दिया जाता है। अगर तुम बहुत ज्यादा पतले हो तो लोग कहते हैं जस्ट ईट मोर या मास गेनर खा लो, ज्यादा वेट्स लिफ्ट किया करो, डर्टी बल्किंग कर लो और बहुत सी चीजें हैं। एंड टू अ सर्टेन पॉइंट that sounds logical. Yes, if you want to build muscle, ये तो सच है that you need to be in a calorie surplus. You do need enough food, you do need enough protein. But the lie is eating more is the main thing to build your physique. It's not. Food supports growth, ये सच है, लेकिन training creates the reason for growth. There is a very good friend of mine जिसने मुझे 2-3 दिन पहले कॉल किया था and he had the same problem. उसने कुछ महीने पहले ही जिम ज्वाइन किया है and he is also eating right, but he can't see any significant changes. So मैंने उससे कहा that most skinny guys are not failing because they don't eat right. They are failing because they train in a way that gives their body almost no reason to change. You should ask yourself, is your training actually forcing your body to build muscle? And if the answer is no, then just eating extra calories won't turn your physique into an aesthetic one. That's why so many skinny guys bulk for months and then say, मैंने weight gain किया है but मेरे body में कुछ significant changes नहीं दिख रहा है. Because weight gain is not equal to muscle gain. You need to listen carefully. Your body will not build muscle just because तुम एक 3,500 कैलोरीज की डाइट पे हो। तुम्हारी बॉडी तभी मसल बिल्ड करेगी जब उसको एक क्लियर सिग्नल मिलेगा दैट इट नीड्स टू अडेप्ट। सपोज तुम एक ग्राउंड का रोज एक चक्कर लगाते हो। अगर तुम रोज रनिंग पे जाओगे तो तुम नोटिस करोगे कि 10 दिन बाद तुम उसी ग्राउंड के 4-5 चक्कर इजीली लगा रहे हो। एंड दिस इज द सिग्नल ऑफ अडेप्टेशन। और यही सिग्नल कम्स फ्रॉम progressive overload, time under tension, proper exercise execution, enough volume over time. Suppose दो दोस्तों ने जिम ज्वाइन किया है, they both have the same weight, the same height, the same body composition, they almost look identical, and they both eat in a calorie surplus. The guy number 1 does random exercises, no progression, no logbook, never taking sets to failure, too much ego lifting, changing routines every week. And then there is guy number 2. He tracks his lifts. He does progressive overload. He lifts close to failure. He sticks to a simple routine for 2-3 months. He controls his movements. After 6 months, तुमको क्या लगता है कौन ज्यादा मस्कुलर दिखेगा? Obviously, the second guy. Food is the support system and training is the builder. This is the part जहाँ बहुत से लोग offend हो जाते हैं because eating is always easier than training properly. लोगों को लगता है कि वो एक 1200 कैलोरीज की शेक पी के कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट योर बॉडी डज नॉट केयर हाउ हार्डकोर योर बल्क लुक्स लाइक। वो सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करती है। सो हियर इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन इंस्टेड। गेट ब्रूटली कंसिस्टेंट विथ योर ट्रेनिंग। स्टॉप हॉपिंग फ्रॉम प्लान टू प्लान। तुम्हें हर वीक अपने लिए एक नया वर्कआउट प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैक योर लिफ्ट्स। आज के दिन तुमने जो भी वर्कआउट किया, जितने भी वेट से किया और उसमें जितने भी रेप्स लगाए, वो सबको एक जगह नोट डाउन करो कि जब तुम नेक्स्ट वीक उसी मसल को ट्रेन कर रहे हो तो जितना भी वेट और उसमें जितने भी रेप्स किए उसको तुम सरपास कर सको। फोकस ऑन क्वालिटी रेप्स, यूज फुल कंट्रोल, यूज गुड रेंज ऑफ मोशन, मेक द टारगेट मसल एक्चुअली डू द वर्क। एक सेट को 15 सेकंड में कंप्लीट करना और एक सेट को 30 सेकंड में कंप्लीट करना, दोनों में बहुत फर्क है। ऑलवेज ट्रेन क्लोज टू फेलियर। इफ योर सेट्स आर कंफर्टेबल, योर बॉडी हैज नो रीजन टू ग्रो।
ऐसा किसी भी रूल बुक में नहीं मेंशन किया हुआ है कि तुम्हें बस 3 सेट लगाने हैं, वो भी 12-12 रेप्स के। अगर तुम किसी वेट से कंफर्टेबली 12 रेप्स कर ले रहे हो तो तुम्हें एक ऐसे वेट को चूज करना है जिससे तुम मैक्सिमम 6 to 8 रेप्स ही कर पाओ। यूज अ स्मॉल एंड कंट्रोल्ड सरप्लस। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है और आप 2200 कैलोरीज भी खाओगे तो ये सरप्लस इनफ है आपके बॉडी में मसल बिल्ड करने के लिए। जरूरी नहीं कि आपको 2500 या 2600 कैलोरीज खानी पड़े। A moderate calorie surplus is enough. The goal is to build muscle, not to just gain weight. Always prioritize recovery. अगर आप एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन ऐड करते हो अपने हर मील में और एक अच्छा स्लीप शेड्यूल मेंटेन करते हो तो ये काफी है एक अच्छी रिकवरी के लिए। मसल इज ओनली बिल्ड व्हेन ट्रेनिंग एंड रिकवरी वर्क टुगेदर। ऑनेस्टली अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना इज नथिंग मोर देन एक्सक्यूज, क्योंकि जब तक तुम्हारे दोनों हाथ, दोनों पैर और पूरी बॉडी ठीक तरह से फंक्शन कर रही है, यू कैन चेंज योर फिजिक no matter how bad you are shaping. So that's it from this video. If this video helped you, you can just like and subscribe my channel and comment on the food so that I could know that you watched the video till the end. I'll see you in the next one.